Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 4, which is environmental balance. Okay, now what do you mean by the word environment? You might have heard about this word, right? So environment मतलब क्या, आपका जो सराउंडिंग है, राइट जो आप प्लेसेस विजिट करते हो, आपका क्लाइमेट कैसा है, आपका वेदर कैसा है, वेदर इट इज़ हॉट, वेदर इट इज़ कोल्ड, whether it is raining, whether it is snowy. Okay, so this is what we call the environmental condition. Okay, अब what do you think कि इन सब चीज़ों में भी बैलेंस होना ज़रूरी है क्या? Right, so they need to have balance. So you will be studying about various environmental balance, how they are carried out. For example, let's take one example. अगर plants अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे and if they will not grow, what you will eat? Because you eat plants, right? You eat plants in the form of vegetables. And जो animals है उनको भी plants की ज़रूरत है, because most of the animal which are called as herbivores, they are dependent on the plants only, right? अगर plants नहीं होंगे तो we will not get oxygen also, which is very much important for us. Without oxygen we are not going to live, right? So अगर plant life ख़त्म हो गई, so these are the main consequences जो हमें face करनी पड़ेगी, right? So there need to be an environmental balance. ठीक है, so let's start and you can try this. Okay, ask the elders in your family to take you to a riverside or to a lake or a stream. Okay, you can visit any lake, any river or any stream which is there nearby you. Okay, now what you have to do is make a list of all the living things which you can see there. Now we have studied about living things, we have studied about the characteristics of living thing ना, कि जो living thing होते हैं उनमें growth होगी, they need food to it, right? then वो reproduction हो सकता है उनके अंदर, they will have respiration process, they will have excretion process ना, ये सारे processes हमने पढ़े थे lesson number 1 के अंदर, right? 1 और 2. so हमें पता है कि living things किसको बोलते हैं. okay, so you have to make a list out of the environment कि which are the living things. ठीक है, then if you don't know the name of any living things you see, make a note of them describing their shape, कलर, साउंड, शेल्टर एक्सेट्रा. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग के अंदर आपको कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स मिले जिनको आप जानते नहीं हो, तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट ड्रॉ इट और यू कैन राइट हाउ डज इट लुक लाइक, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड देन यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, और यू कैन ड्रॉ देयर पिक्चर्स. नाउ later on you have to count how many types of living things you have seen there. ठीक है, now you can repeat the same activity near your house, in the school garden or in a field. ठीक है, so this is how you will be observing various living things which are present in the environment. ठीक है, now see, can you tell in the course of your observation, मतलब जब आप ये observe कर रहे थे, आपने कोई sign देखा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ओके, दो द लिविंग थिंग्स themselves were not seen. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि कुछ ईटन फ्रूट्स या शेल्स आपको दिखे होंगे, या फॉलन फेदर्स, बर्ड्स के फेदर्स दिखे होंगे, एनिमल ट्रैक्स दिखे होंगे, काउडंग दिखा होगा, नेस्ट दिखे होंगे, कुकॉन्स मतलब जहाँ से बटरफ्लाई आता है, दैट आर कॉल्ड एज कुकॉन्स. पहले लार्वा होता है, देन कुकॉन्स होता है, देन फिर बटरफ्लाई आता है, देन आपको एग्स दिखा होगा, देन हनी का होम देखा होगा जिसको हम बोलते हैं हनी कोम, राइट? सो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ऑल दिस थिंग. देन यू माइट have observed many microorganisms also, but you don't know that we call them as microorganism. अगर आप देखोगे जो सॉइल होता है, सॉइल के अंदर भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें खुद से नहीं दिखते, हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखते. ओके, सो टू ऑब्जर्व देम वी नीड माइक्रोस्कोप. ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स डू यू सी एट द प्लेस यू विजिटेड? अब आपने कितने टाइप्स के लिविंग थिंग्स देखे होंगे? यू कांट इवन काउंट, राइट?
So do you think you saw all the kinds of living thing that belong there, and did you see the same living thing at various places or different one? अगर आप कोई भी प्लेस विजिट कर रहे हो, वहाँ पे आपको सेम टाइप के लिविंग थिंग मिलते हैं या अलग टाइप के मिलते हैं? बिकॉज इफ़ आई विजिट माई एरिया एंड इफ़ आई विजिट अनदर एरिया, आई विल सी ह्यूमन बींग्स, आई विल सी द सेम बर्ड्स, I will see dogs, cats, right? So what did you observe? You have to tell me, okay? Now see, अब आपने जो भी चीज़ें देखी होगी, one thing you can say कि यहाँ पे क्या थी, वैरायटी प्रेजेंट थी, राइट? अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है. दिस इज़ वॉट यू कैन कंक्लूड आफ्टर यू विजिट द प्लेसेस, राइट? सो सी, the variety we see on all the living thing that belong to a particular area, उसको हम बोलते हैं biodiversity. Now diversity मतलब क्या? Variation मतलब difference, and bio मतलब living thing. तो लिविंग थिंग के अंदर जो डिफरेंस आप नोटिस करते हो उस प्रॉपर्टी को या उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो अभी आपके एरिया में अगर आपको कोई अलग एनिमल भी दिखता है तो दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस, ऑफ द प्लेस वेर यू आर लिविंग इन. ठीक है, नाउ सी, विच वन ऑफ द प्लेसेस यू विजिटेड शो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी? अब आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा प्लेस होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग थिंग्स में डिफरेंस देखने मिलेगा आपको? यू कैन विजिट ज़ू, राइट? ज़ू के अंदर आप देखोगे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स होंगे. अगर आप प्लांट वाला ये विज़िट कर रहे हो गार्डन, देन यू बोटानिकल गार्डन जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे आप एकदम अलग वैराइटीज़ के स्पीशीज़ के प्लांट्स देखोगे, राइट? सो यू कैन सी मैनी प्लेसेस जहाँ पे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हो. नाउ सी, टू स्टडी अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस मीन्स अभी आपको एक स्पेसिफिक प्लेस का, आप जहाँ रहते हो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी चेक करना है. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले उनको सारी चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है. जैसे आपको मैंने बोला है टू विजिट अ लेक, स्ट्रीम एंड यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट, राइट? तो वैसे ही साइंटिस्ट को वो पूरे प्लेस का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है. वो पहले देखते हैं कि वो प्लेस पे कौन सी चीज़ें हैं, कौन से लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है. ओके, उसके बाद वो ऑब्जर्वेशंस देखने के बाद वो अलग अलग कंडीशंस भी देखते हैं कि डे टाइम पे कौन से लिविंग थिंग्स है, नाइट टाइम पे कौन से लिविंग थिंग्स है, फिर समर सीज़न में कौन से लिविंग थिंग्स है, विंटर सीज़न में कौन से हैं. सो उनको ये बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है. एंड इफ़ यू सी, यहाँ पे वो सीज़न के अकॉर्डिंग भी स्टडी कर रहे हैं, मीन्स दे टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू स्टडी सच अ बायोडाइवर्सिटी. बिकॉज अगर उनको समर सीज़न का पता करना है तो दे विल हैव टू वेट फॉर समर सीज़न. रेनी सीज़न का पता करना है तो दे विल हैव टू वेट फॉर रेनी सीज़न. सो इट टेक्स a long time to describe about biodiversity of a specific place. ठीक है, then they use special devices to make the observation of living things that are found at great heights or depth as well as of microorganism. now आपको पता है कि कुछ ऐसे भी living things है जो स्काई में होते हैं and we can't visualize and we can't know कि कौन से living things है क्लाउड के अंदर, या डीप इन द वाटर भी आप देखोगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश होती हैं, राइट? तो उनको पढ़ने के लिए दे कांट गो डीप इनसाइड द वाटर, राइट? तो यहाँ पे वो क्या यूज़ करेंगे, दे विल यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट पे एंड सबके ऑब्जर्वेशंस को एक साथ लाके दे विल स्टडी इट अगेन. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब. ओके, इट विल टेक a lot of time of observation. It will take a lot of time. ठीक है, it will take a lot of patience also because they have to wait so long just to calculate the biodiversity of a specific place. ठीक है, so only when all such efforts are made over a long period of time can we be sure of the biodiversity of a place. तो बहुत ज़्यादा टाइम किसी प्लेस को ऑब्जर्व करने के बाद ही आप बता सकते हो कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है. ठीक है, नाउ सी, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट?
सो जो हमारा सराउंडिंग है एंड सराउंडिंग में जो भी कंडीशन है, सपोज समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, तो हमारे सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास जो भी कंडीशन होगी जो हमारा लाइफ को अफेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट. सो हाउ यू विल डिस्क्राइब इट, द सराउंडिंग एंड द कंडीशंस इन दो सराउंडिंग. ठीक है, जो आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे जो कंडीशन है इस वक्त, एंड अभी सब आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है उस वक्त बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, मलेरिया होता है लोगों को बहुत ज़्यादा, राइट. सो वो एक कंडीशन हो गया है दैट इज़ अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ लिविंग इन दोज एरियाज, है ना. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट, कि भी एनवायरनमेंट सही नहीं चल रहा, राइट. देन इट इंक्लूड्स मैनी कंपोनेंट्स. अभी इसके अंदर सनलाइट आता है, एयर आता है, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. Okay, so all these components they are included in the environment and living thing and non-living thing. Now ऐसा नहीं है कि living thing है तो उसको सिर्फ living thing या living organism की ज़रूरत होती है. ठीक है, so living and non-living both they are dependent on each other. ठीक है, तो living thing non-living thing के बिना नहीं रह सकते and non-living living thing के बिना नहीं रह सकते. ठीक है, so there is a lot of give and take or interactions between them. अब आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना, दैट इज़ नॉट फ्री. आपको ऐसा लगता होगा कि दैट इज़ फ्री टू अस, बट दैट इज़ नॉट फ्री. व्हेन यू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट ना, आपको प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ेगा. अगर आप प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दोगे ना तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे एंड इट विल नॉट गिव यू ऑक्सीजन. ठीक है, सो नथिंग इज़ फ्री हियर, यू आर पेइंग फॉर एवरीथिंग. ठीक है, सो गिव एंड टेक चलता है यहाँ पे. अब दोगे तो आपको मिलेगा, एंड ऐसे ही बहुत सारा इंटरैक्शंस होता है अलग अलग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. ओके, सो एनवायरमेंटल साइंस यही सारे इंटरैक्शंस पे स्टडी करता है. एनवायरमेंटल साइंस क्या है, EVS, राइट. सो EVS studies about this all types of interactions which take place between living thing and non living thing. ठीक है, now see, these are the different species of animals which you can see in this picture. Ostrich, grasshopper, snake, mouse, tiger, fish. Then there are many animals, elephant, eagle, cow, buffalo, sunrise, caterpillar, frog, right. So you can look at the picture of the living and non-living thing which is there here, and you can discuss the mutual relationship between these various factors of the environment. Now what do you think, how they are dependent on each other and what kind of relationship each of them will have with each other? Yes, come on. Now see, I'll tell you one food cycle which goes on which I know. जो ग्रास होता है ना, वो ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर. ठीक है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, बर्ड्स, राइट. एंड बर्ड्स किसको खाते हैं, स्नेक. स्नेक किसको खाते हैं, अब स्नेक को कौन खाता है, ईगल, राइट. ये ईगल स्नेक को खा जाएंगे. देन अब ये ईगल को कौन खाएगा, ईगल को खाने वाला कोई नहीं है. ईगल को, देन टाइगर एंड लायन को, इनको कोई नहीं खाता. इनके ऊपर कौन आता है, यू नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनका खाना होते हैं ये डेड एनिमल्स. तो जब ईगल, टाइगर, एलिफेंट, लायन, ये सारे एनिमल्स जब डाई होंगे ना, व्हेन दे विल डाई, तो उस टाइम क्या होगा, दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंगस विल ग्रो ऑन देम, एंड फिर वो उनकी जो बॉडी है इट विल गेट मिक्सड विद द सॉइल. ठीक है, फिर वो सॉइल में मिक्स होने के बाद वो सॉइल के ऊपर से फिर से प्लांट ग्रो करेगा. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, ग्रास को ग्रास हॉपर खाते हैं, राइट. तो अब वो सॉइल से ग्रास ग्रो करेगा. सो दिस इज़ हाउ द फूड साइकिल गोज ऑन एंड इट कंटिन्यूज. ठीक है, नाउ सी, दिस इज़ द फूड चेन. वी कैन से सनलाइट है ना, सनलाइट दिख रहा है आपको. सनलाइट किसको चाहिए होता है, वी नीड सनलाइट एंड ऑल्सो द प्लांट्स नीड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट. तो जब प्लांट्स को सनलाइट मिलेगा दे विल ग्रो, है ना. ये प्लांट्स से फिर क्या होगा, ग्रास, कैटरपिलर विल ग्रो. कैटरपिलर को कौन खाएगा, ग्रासेस को किसने खाया, कैटरपिलर ने, या कोई भी वॉर्म ने खाया. अब वो वॉर्म को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर.
ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? बर्ड्स, स्पैरो. सो सी, अ worm eats grass and leaves. This is a worm which will eat the grasses and leaf. अब ये worm को कौन खाएगा? Grasshopper will eat this worm and bird will eat this grasshopper. This is how the cycle goes on. इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर worms grasshopper नहीं होंगे तो birds किसको खाएंगे? अगर ग्रासेस नहीं होंगे तो ये वर्म्स किसको खाएंगे? वर्म्स नहीं होंगे तो ग्रास हॉपर किसको खाएंगे? सो यू कैन कंपेयर हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ each and every living thing and non-living thing, they are interrelated to each other, and this is the relationship which they follow. ठीक है? Now see, can you tell me who eats bird? bird को कौन खाएगा? बर्ड को स्नेक खाएंगे. ओके, देन स्नेक को ईगल खाएंगे एंड ईगल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे. राइट? नाउ सी, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कैन यू टेल मी व्हाट यू कैन सी? व्हाट इज दिस? अच्छा, वी आर लेफ्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द फूड ऑफ प्लांट? येस, व्हाट डज द प्लांट नीड टू ग्रो? दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम यू. राइट? दे नीड सनलाइट, they need water. So this is the food of the plant. And also soil contains some amount of nutrient like sodium, potassium, nitrogen, which are important for the plant. Okay, so those are the food of the plant. Now look at the picture and tell me what can you see? This is a chain, right? So and ये chain जो है वो link है एक दूसरे से, right? So this is how we all are connected to each other. See, there are several links in this chain, right? And if the links were to separate from each other, अगर आपने सबको अलग किया, so तब आप उसको chain बोल पाओगे क्या? नहीं ना, because they have been separated from each other. Even though each link is a complete object. ये अगर आप suppose see, this is the one which is connected. दिस इज़ द सेकेंड विच इज़ कनेक्टेड. दिस इज़ द थर्ड. अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ना, फिर भी आप इसको चेन नहीं बोल पाओगे अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अटैच टू ईच अदर. राइट? सो इट इज़ जॉइंड टू द लिंक्स बिफोर एंड आफ्टर इट. नाउ इफ एनी लिंक्स कम्स लूज, द चेन विल ब्रोक. राइट? अगर सपोज ये बीच वाला लिंक वो टूट गया तो यहाँ पे चेन तो टूट गई ना. तो सेम वे इट हैपन्स विद द फूड साइकिल ऑल्सो एंड द फूड चेन ऑल्सो. ठीक है? सो इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, सम प्लांट्स, वर्म, ग्रास हॉपर एंड स्पैरो. राइट? सो दे आर ऑल कनेक्टेड. वी सॉ इन दिस पिक्चर. राइट? सन से क्या हुआ? प्लांट्स ग्रो किए. प्लांट्स को खाने वाले कौन है? वर्म्स. वर्म्स को खाने वाले कौन है? ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर को खाने वाले कौन है? बर्ड्स और स्पैरो. राइट? So each of the component, that is plants, worm, grasshopper, bird, is food for the next one. Right? अभी plant जो है is the food of worms, worms जो है is the food of grasshopper, grasshopper जो है is the food of sparrow. So they are food for each other. Right? And that is why we say that they form a chain. And इस chain को हम क्या बोलते हैं? We call it as food chain because they are dependent for food on each other. Right? So each of this component is a link in a food chain. ठीक है? Now can you tell me, can you look at the picture and tell what is the deer's food? What the deer is eating? It is eating the plants only. Right? And what is the food for the tiger? This deer. Right? Deer will eat the plants and deer को कौन खाएगा फिर? This lion and tiger. Okay? So the picture above shows another food chain. You have to guess the missing link in it. Look at the first and the third picture. Now you have to find out what is missing here in the second picture. What is missing? See, in nature there are many food chains like this, and if one of the link in a chain is lost from the chain, can the food chain last? अगर बीच में से एक भी गायब हो गए, सपोज ये वाले चेन में ग्रास हॉपर गायब हो गया, तो क्या होगा?
बर्ड्स मतलब स्पैरो को कभी खाना ही नहीं मिलेगा. सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट एवरी लिविंग थिंग इज. ओके, बिकॉज अगर ग्रास हॉपर नहीं है तो बर्ड्स को खाना नहीं मिलेगा, तो बर्ड्स विल ऑल्सो डाई ना, तो उनके आगे की चेन ही पूरी ख़त्म हो जाएगी. ओके, तो सी व्हाट कैन यू से. अभी यहाँ पे सनलाइट मिल रहा है एंड सन से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स को वॉर्म खा रहे हैं. ओके, अब वॉर्म को कौन खाएगा? वी हैव सीन कि वॉर्म को कौन खाता है? ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर को कौन खाएंगे? बर्ड्स. बर्ड्स को कौन खाएगा? बर्ड्स को खाएंगे स्नेक. एंड स्नेक को कौन खाएगा? आई विल शो यू स्नेक को कौन खाएगा. सी व्हाट इज दिस? आउल, राइट. तो स्नेक को कौन खाएगा? ईगल और आउल. ओके, सी इफ one of the link in the chain is lost from the chain, can the food chain last? What can you say? No ना, the food chain will break and फिर जहाँ से ब्रेक हुआ है उसके आगे जो भी होगा all will die because they all are dependent on food for on each other. and एक भी ख़त्म हो गया तो आगे का पूरा food chain ही ख़राब हो जाएगा, right? So I hope you are clear with what is food chain. Now see, फूड वेब क्या होता है? जब बहुत सारे फूड चेन आप एक साथ ला दोगे ना, तो दैट विल क्रिएट अ फूड वेब. ओके, सी कैन यू टेल मी वन लिविंग थिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन, राइट? एंड that give rise to a food web in nature. See, find the different food chains of which the worm and the mouse will form a link. Now worm and mouse, how they will form a link? See, worms जो है, worms को mouse खाते हैं ना. See, plants को sunlight मिला, plants will grow. अब वो plants को खाने के लिए worms है. अब worms तो बहुत छोटे होते हैं, उनको mouse भी खाते हैं. So mouse will eat them. अब mouse को कौन खाएगा? Birds. You might have seen ना birds eating mouse. Crow भी खाते हैं उनको, right? देन क्रो खाएंगे. क्रो को कौन खाएगा? स्नेक. स्नेक को ईगल और आउल. एंड आउल फिर सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा एंड फिर से उससे प्लांट ग्रो करेगा, राइट? सो दिस इज हाउ ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. नाउ यू माइट हैव सीन प्लांट्स, सनलाइट से प्लांट्स ग्रो करेंगे, राइट? ग्रासेस ग्रो करेंगे एंड उनको कौन खाएगा? रैबिट. रैबिट को कौन खाएगा फिर? स्नेक. सो दिस इज़ दी अनदर फूड चेन विच इज़ सीन. तो ऐसे आप बहुत सारे फूड चेन एक साथ लाओगे ना, तो दे विल फॉर्म अ फूड वेब. ठीक है? नाउ सी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन द फूड चेन आर प्लांट, बिकॉज जो हमारा फूड चेन है ना वो प्लांट से ही स्टार्ट होता है, राइट? नाउ अभी आपने देखा होगा, अभी हमने इतने सारे फूड चेन पढ़े. योर ऑल्सो प्लांट इज़ द इनिशियल सोर्स. Here also plant is the initial source. Here also the deer is eating the plants and deer को फिर tiger खाएगा. Here also we saw plants. So food chain या food web के अंदर सबसे ज़्यादा important कौन है? Plants are important. Okay. So every living thing they will get its food from the environment. And environment में क्या है? Plants. Now let us study the plants with the diagram. नाउ ये सनलाइट है, प्लांट्स को सनलाइट मिल गया ना. वॉट द प्लांट नीड टू ग्रो? दे नीड वाटर विच दे गेट फ्रॉम द रूट्स, राइट? हम सॉइल के अंदर पानी डालते हैं ना, वो सॉइल फिर रूट्स में एब्जॉर्ब करता है पानी को एंड रूट्स के थ्रू पानी लेंगे. दे विल गिव आउट ऑक्सीजन एंड दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्रो, राइट? सो सी, मैनी एनिमल्स इन द एनवायरमेंट दे ओनली ईट प्लांट्स. तो ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं. दे विल नॉट ईट अदर एनिमल्स. अदर एनिमल्स दे ईट द एनिमल्स दैट लीव ऑन प्लांट. एंड उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स. ओके, बट प्लांट दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. तो प्लांट्स को क्या चाहिए अपना खाना बनाने के लिए? दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है?
इट मीन्स दैट प्लांट्स जो है दे आर द मेन सपोर्ट सिस्टम इन द फूड चेन स्टार्ट ही नहीं हो सकता विदाउट प्लांट्स, सो दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वी मस्ट नॉट कट प्लांट्स. ठीक है, वी मस्ट सेव प्लांट एंड वी मस्ट प्लांट एटलीस्ट 1 to 2 प्लांट इन अ मंथ और अ वीक. ठीक है. Now can you tell me and can you find different food chains in which worm and mouse they will form a link? Now can you identify where is worm and where is mouse? See, mouse is here and worm is here. So can you tell me how this worm and this mouse will form a link? See, plants है. Okay, plants को किसने खाया? worm ने खाया. worm को ग्रास हॉपर ने खाया. ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? mouse. So this is the one food chain. Okay, another one, plants है. plants पे फंगस ग्रो करेंगे या उन पे जो फ्रूट्स भी आते हैं उनको भी कौन खाता है? mouse and squirrel. Right, so this is the another food chain. Then so this is the two food chain that is forming with the worms and mouse. Okay, now one living thing can be a part of number of food chain and that will give rise to a food web in nature. Now if you see, ये grass है. grass को कौन खा रहा है? Who is this? goat. Suppose it is a goat. Okay, अब ये goat को कौन खाएगा? either fox or either lion. Then प्लांट्स को कौन खा रहा है? worms को कौन खा रहे हैं? ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग्स को कौन खा रहा है? स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल. राइट. देन प्लांट्स को कौन खा रहा है? दूसरा रैबिट्स को कौन खाएंगे? रैबिट्स को फॉक्स खा सकते हैं या लायन खा सकते हैं. ओके, देन प्लांट्स को और कौन? सो दिस इज हाउ वेरियस फूड चेन्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इसको आप बोल सकते हो दिस इज़ अ फूड वेब, क्योंकि इसके अंदर 3 to 4 फूड चेन एक साथ जॉइंड है. एंड हाउ द कनेक्शन इज शोन हियर. राइट, सो इसको हम बोलते हैं फूड वेब. सो दिस इज़ द फूड वेब विच इज़ फॉर्म्ड बाय interlinking various several food chains. ठीक है. Now see, environmental balance. Now there are many food chain in our environment, right? बहुत सारे food chain हमने देखे. Because of the food chain, every living thing will get it food it needs and therefore it will continue to live. Because ये food chain है, इसलिए हर एक living thing को अपना खाना मिलेगा and they will survive, right? So microorganism, they live in the soil, they will help in the process of decomposition of the plant residue. Now what do you mean by decomposition of the plant residue? अभी मैंने आपको क्या बोला कि plants जो होते हैं उनको कौन खाएगा? worms को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? either frog और either snail. ठीक है. अब frog एंड snail को कौन खाएगा? ईगल को कौन खाएगा? आई टोल्ड यू, ईगल के ऊपर फंगस ग्रो करेंगे एंड वो फंगस क्या करेंगे? ईगल को सॉइल के साथ मिक्स कर देंगे एंड वो सॉइल के साथ मिक्स होने के बाद सॉइल को सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे एंड उस पर से प्लांट ग्रो करेगा. राइट. तो ये जो सॉइल के साथ मिक्स हो रहे हैं ना, ईगल, लायन, टाइगर, एलिफेंट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन. ठीक है. देन डेड एनिमल्स, एक्सक्रीटा एक्सेट्रा, इनके ऊपर सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे एंड जिसके वजह से क्या होगा? दो सब्सटेंसेस दे विल हेल्प in the growth of the plant and because they will get added to the soil, all the nutrient from the dead animals or by the decomposition process they will get added in the soil. Okay, now plant use them for their growth. अब soil के साथ वो mix हो गए, soil को सारे nutrient मिल गए, अब plants उनको अपने growth के लिए use करेंगे. Thus plants use substances in the soil for their growth and when plants and animals die, the decomposition of the remains add this substance to the soil once again. ठीक है. तो जैसे ही कोई भी प्लांट या एनिमल डाई करता है तो फिर से उनका न्यूट्रिएंट किसको मिल जाता है? सॉइल को ही मिल जाता है एंड देन वो सॉइल से फिर से प्लांट्स ग्रो करेंगे. ओके, सो दिस इज़ द एनवायरमेंटल बैलेंस विच इज़ मेंटेन्ड एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दिस एनवायरमेंटल बैलेंस
बिकॉज आपने देखा होगा अगर कोई एक भी एनिमल गायब होगा तो पूरे आगे की फूड चेन खराब हो जाएगी. ओके, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दिस एनवायरमेंटल बैलेंस. नाउ यू नो ऑक्सीजन is given out in the process and gets added to the air again. अब ये सारे प्रोसेसेस में क्या होता है, we need ऑक्सीजन, तो who is giving us ऑक्सीजन? प्लांट्स, राइट. तो ऑक्सीजन देंगे वो and they will, that oxygen will get added to the air and air से कौन लेगा? we human beings, animals will take, right. तो यहाँ पे भी एक साइकिल चल रहा है नेचर का. ऐसे ही बहुत सारे साइकिल्स चल रहे होते हैं नेचर में and thus there is a interaction among living thing and between living thing and non living thing in nature. We all are dependent on one another, ठीक है. Now see, the interaction will go on continuously and this interaction, it will help us to maintain the food chain in the environment. And जब ऐसे बहुत सारे साइकिल भी चलते हैं, now if you might have heard about वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो ऐसे बहुत सारे साइकिल है जो हमारे एनवायरनमेंट में चलते रहते हैं एंड ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड रखते हैं. तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी हमारे एनवायरनमेंट में, सब कुछ बैलेंस्ड होगा. ओके, सो these cycles, they are important to us and also living things, they get continuous supply of water. अब हमें water क्यों मिल रहा है continuously? Because हमारे environment में water cycle continuously चलता है. Okay, then living things, they use oxygen from the air for breathing and they give out carbon dioxide which are needed for the plants for their growth. एंड वो अपना खाना बनाने के लिए दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम प्लांट से ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड वी आर गिविंग देम कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ सी हाउ वाटर साइकिल वर्क्स. अभी आपने देखा होगा जब बारिश आती है ना तो पानी दो जगह जाता है. एक तो वो ग्राउंड वाटर के साथ सॉइल के नीचे चला जाता है एंड वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है. ओके, दूसरा वो रिवर्स एंड लेक्स में जाता है. ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, अभी सपोज यू कैन ट्राई दिस एन एक्सपेरिमेंट. आप दो बीकर लेना, एक बीकर लेना, उसको इतना फिल करना एंड सनलाइट के सामने रखना. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व वो जो पानी होगा वो इतना हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस होता है एंड इसलिए पानी का लेवल कम हो जाता है. सो सेम थिंग हैपन्स इन समर सीजन ऑल्सो. जब बहुत ज़्यादा सनलाइट ही होती है एंड बारिश तो आ रही नहीं होती है उस वक्त, तो रिवर एंड सब जगह से पानी कम हो जाता है. एंड ये जो पानी है जाता कहाँ पे है? बिकॉज ये जो पानी है उसका वेट जो है वो एयर से कम है, इसलिए ये क्लाउड तक पहुंच जाता है पानी, रिवर्स सीज एंड लेक से. ठीक है, क्लाउड तक गया एंड ये कैसा जाता है? स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, ऐसे ऐसे. फिर ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट एक दूसरे के साथ आके मिलेंगे एंड दे विल फॉर्म अ बिग ड्रॉपलेट. एंड ये बिग ड्रॉपलेट फिर क्या होता है? दे फॉल ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रेन. फिर रेन होगा, फिर से रिवर, लेक, स्ट्रीम फिर से फिलअप हो जाएंगे. दिस इज़ हाउ द वाटर साइकिल कंटिन्यूज. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वाटर साइकिल. नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि लिविंग थिंग के एग्जिस्टेंस के लिए एनवायरमेंट में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज अगर एक भी बैलेंस बिगड़ा तो हमारे सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. ओके, now what we have learned in this lesson in environmental balance is कि there are innumerable types of living things which are present on earth, right? Then there is a interaction between living thing and non-living thing. Interaction के बिना it will become difficult for us to survive. Then we saw कि different kinds of plants, animals और microorganisms, they are present in different regions of the earth, है ना. हर एक region में हमें अलग अलग types के plants, animals मिलेंगे, microorganisms मिलेंगे, right. Then we saw about the water cycle and various food chains which are important in nature and why there is a need to maintain the environmental balance between those cycles and chains. And we saw कि ये जो balance है, this balance is maintained from thousands of years. This is not a new balance which have been created. ये thousands of years से ये balance चल रहा है and that is the reason अभी तक हम survive कर रहे हैं. जैसे ही ये balance बिगड़ेगा क्या होगा? We will suffer. Okay? So I hope you are clear with all the concepts and topics which are covered in the lesson. So we are done with the lesson. Thank you everyone.